آداب عرض ہے MCN اردو خبرنامے میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حج 2023 کے لیے آن لائن درخواست دہی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، مگر 13 فروری کی دوپہر سے ویب سائٹ بند رہے، جس کے سبب خواہش مند افراد ہی درخواست داخل نہیں کر پا رہے ہیں اور ان میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ناظرین، حج 2023 کے لیے 10 فروری سے آن لائن درخواست دہی کا عمل شروع کیا گیا اور آن لائن درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 10 مارچ مقرر ہے، جس کے سبب خدمات حجاج کمیٹی کے دفتر پر درخواست دہی کے لیے خواہش مند افراد کا ہجوم ہے، مگر 13 فروری کی دوپہر سے اچانک ویب سائٹ میں بگاڑ آ گیا اور کل دوپہر سے آج شام تک ایک بھی فارم لوڈ نہیں ہو پایا ہے، جس کے سبب فریضہ حج کی ادائیگی کے خواہش مند افراد میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ یوں تو حج پروگرام ظاہر کرنے میں پہلے ہی تاخیر ہو گئی ہے اور درخواست دہی کے لیے وقت بہت ہی کم دیا گیا ہے، جبکہ سعودی حکومت نے اس سال ہندوستان کے حاجیوں کے لیے کوٹے میں بھی اضافہ کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود حج کمیٹی دفتر کی ویب سائٹ میں آئی تکنیکی خرابی کے سبب درخواست دہی میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ اس ضمن میں ہم نے خدمات حجاج کمیٹی کے ذمہ دار شیخ فیصل کے علاوہ درخواست داخل کرنے کے لیے آئے خواہش مند افراد سے بھی بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں۔ تیاری کرنے میں کافی دقتیں آئیں گی اور جو مرحلہ آگے ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور حج کمیٹی کے لیے بھی وہ بھی دشواری بخش ہونے جا رہا ہے۔ کل سے ایک نئی بات یہ پیش آ رہی ہے کہ ویب سائٹ سلو چل رہی ہے۔ پچھلے سنیچر کے روز حج کا فارم اپلوڈ کیا گیا تھا ویب سائٹ پہ، لیکن چونکہ 1-2 دن میں کچھ ٹیکنیکل سنیگ ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ 2-3 دن میں حل ہو جائے گا، لیکن کل دوپہر کے بعد سے بہت بڑی دقتیں آ رہی ہیں۔ ویب سائٹ صحیح ڈھنگ سے نہیں چل پا رہی ہے۔ ویب سائٹ کے اندر کچھ مسئلے ہو رہے ہیں، جیسے یہ حاجی کی تفصیلات بھری جاتی ہیں تو آگے کچھ ایرر میسج دے دیا جاتا ہے اور حاجی کی بھری ہوئی تفصیلات اس میں سے اڑ جاتی ہے۔ کبھی ویب سائٹ شروع ہو جاتی ہے، کبھی آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوتا ہے، کبھی ڈاکیومنٹ اپلوڈ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب اس سے یہ تشویش حاجیوں میں پھیل گئی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک تو حج کے فارم دیری سے شروع ہوئے ہیں، دیری سے شروع ہونے کے بعد ویب سائٹ ستا رہی ہے، تو حاجی کے ذہن میں یہ شبہ ہو رہا ہے کہ کہیں نہ اس میں کہیں گورنمنٹ کا ہاتھ ہے یا واقع میں یہ ٹیکنیکل سنیک ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا سے کہ یہ معاملہ جلد سے جلد درست کیا جائے۔ اسی ضمن میں حج کمیٹی آف انڈیا کے چیئرمین عبداللہ کٹی صاحب کو بھی میسج کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد درست کیا جائے اور تمام حاجیوں کی پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ میں شیخ فیصل، جنرل سیکریٹری فیڈریشن آف حج پلگرم سوشل ورکر، مہاراشٹر۔ سعودی ایویشن اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ عازمین عمرہ کو سعودی عربیہ کے کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ارائیو اور ڈپارٹ کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک سرکولر بھی متعلقہ شعبے سے جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین، عمرہ جانے والے عازمین کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ سعودی حکومت نے عمرے کے قیام کی میعاد میں بھی اضافہ کر دیا ہے اور اب عمرہ عازمین 90 دن تک وہاں قیام کر پائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی سہولت فراہم کی گئی ہے کہ عازمین عمرہ سعودی عربیہ کے کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سفر عمرہ کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں اور کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر بھی سکتے ہیں، جبکہ اس سے قبل ایسی کوئی سہولت نہیں تھی۔ اس ضمن میں ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ آف اکنامک پالیسیز اینڈ انٹرنیشنل کارپوریشن کی جانب سے ایک سرکولر بھی جاری کیا گیا ہے۔ G20 کے پیش نظر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر کے تمام کاروباریوں، ہوٹل مالکان اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داران سے صفائی انتظامات رکھنے اور روشنائی کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں میونسپل کارپوریشن اور اورنگ آباد اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے شہر کے تمام کاروباریوں، کاروباری و تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اور ہوٹل و شو رومز کے مالکان سے اپیل کی گئی ہے کہ G20 سمٹ کے پیش نظر وہ تمام کم از کم 3 دن اپنے اپنے علاقوں و اطراف کو صاف ستھرا کر کے یہاں روشنائی کے انتظامات کریں۔ اس سلسلے میں منگل کے روز منعقدہ ایک میٹنگ میں حصہ لینے والے مذکورہ بالا شہریان و ذمہ داروں نے اطمینان بخش تعاون دینے کی حامی بھری ہے۔ عیاں رہے کہ اس سال ہمارے ملک بھارت کو بین الاقوامی تنظیم G20 کی صدارت اور G20 کانفرنس کی میزبانی ملنے کے بعد ہمارے شہر اورنگ آباد میں بھی 27 و 28 فروری کو اس سمٹ کے تحت اہم اجلاس منعقد ہوں گے
اور ان اجلاس میں شرکت کے لیے کم و بیش 29 ممالک کے غیر ملکی مندوبین شہر آئیں گے۔ اس موقع پر خواتین کے استحکام اور ترقی سے متعلق مختلف فیصلے کیے جائیں گے۔ ان میٹنگوں کے شہر میں انعقاد کے سبب دنیا بھر کے ملکوں کی نظریں ہمارے اس تاریخی شہر کی جانب پھر ایک بار مرکوز ہوئی ہیں۔ اسی پس منظر میں ہماری میونسپل کارپوریشن نے مہمانوں کی آمد اور ان کے قیام کے پیش نظر شہر کو خوبصورت بنانے اور سجانے کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس کام میں شہریان سے بھی تعاون کی اپیل کی جا رہی ہے۔ بیوپاری ہوٹل مالکان و تعلیمی اداروں کے ذمہ داران کے اس اجلاس میں ہوٹل راما انٹرنیشنل، تاج ویوانتا، لیمن ٹری، امر پریت، اورنگ آباد جم خانہ، ایم جی موٹرز، ستیش موٹرز، چاٹے کوچنگ کلاسز، بابا پیٹرول پمپ اور دیگر اداروں کے نمائندے و ذمہ داران موجود تھے۔ اس ضمن میں مزید تفصیلات اسمارٹ سٹی دفتر کے ڈپٹی سی ای او सौरभ जोशी ने फराहम की है। आज महापालिकेचे सन्माननीय आयुक्त सरांनी एक जे G20 रूटवरील जे हॉटेल्स किंवा उद्योग आहेत या सर्वांच्या सोबत एक बैठक घेतली आणि त्यांना असं आवाहन केलं की G20 परिषदेच्या अनुषंगाने आपल्या ज्या बिल्डिंग आहेत त्याच्या दर्शनी भागावर त्यांनी इल्युमिनेशन करावं, तिथे स्वच्छता मेंटेन करावी, तसेच जे विदेशी पाहुणे येणार आहेत त्यांच्या वेलकमिंगसाठी त्यांच्या वेलकमचे बॅनर्स वगैरे पण ते त्या ठिकाणी लावू शकतात। यावर सर्व आज बैठकीसाठी उपस्थित असलेले व्यापारी तसेच हॉटेल्स चे ओनर यांचा खूप चांगला प्रतिसाद होता। त्यांनी असंही विचारणा केली की यासाठी काही थीम तुम्ही ठरवली आहे का, तर इल्युमिनेशनची जी थीम महापालिका करते आहे ती थीम आम्ही त्यांना कळवणार आहोत। त्या थीमच्या अनुषंगाने हे सर्व व्यापारी जे आहेत ते इल्युमिनेशन त्या ठिकाणी करणार आहेत। तसेच G20च्या अनुषंगाने जे बॅनर्स आपण शहरामध्ये पाहतो त्यासाठी पण जी थीम बनवलेली आहे ती पण आम्ही त्यांच्याशी शेअर करतोय, जेणेकरून त्यांच्या बिल्डिंगवर ते त्याच स्वरूपात बॅनर्स आणि डेलिगेट्सना वेलकम करण्यासाठी पोस्टर्स लावू शकतात। शहरात विविध ठिकाणी सुशोभीकरणाची कामं चालू आहेत, तर ही सुशोभीकरण एकदा महापालिका करते आहे, परंतु हे भविष्यातही त्याच प्रमाणे मेंटेन व्हावे यासाठी पण व्यापाऱ्यांना हे आवाहन करण्यात आलंय की त्यांच्या बिझनेस ज्या ठिकाणी आहे, त्यांचं हॉटेल ज्या ठिकाणी आहे त्या भागात जे सुशोभीकरण झालेलं आहे त्याचा मेंटेनन्स ते घेऊ शकतात आणि त्या गोष्टी ते मेंटेन करू शकतात। तर यासाठी पण एक पॉझिटिव्ह प्रतिसाद जो आहे तो सर्वांनी दिलेला आहे। याबाबत भविष्यात अजून लोक अप्रोच होतील। माझं नाव सौरभ जोशी, डिप्टी सी ई ओ स्मार्ट सिटी औरंगाबाद। नारेगांव कब्रिस्तान के लिए इंतजामिया ने 7.5 एकड़ ज़मीन अलाट कर दी, जिसके बाद नारेगांव से ज़िला कलेक्टर ऑफिस तक निकाला जा रहा मोर्चा मनसूख कर दिया गया है। ये इत्तला मोर्चे के ऑर्गेनाइजर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि नारेगांव के इलाके की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ है और यहाँ की आबादी 80,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद कदीम कब्रिस्तान की जगह छोटी पड़ने लगी थी और गुज़श्ता 2 सालों से यहाँ के साकिनान कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलाट किए जाने का मुतालबा मुतअल्लिक़ा इंतज़ामिया से कर रहे थे, मगर इस ज़मन में सिवाय तयक़ीन के कुछ हाथ नहीं आया। लिहाजा भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल ग्रुप और दीगर मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर 14 फरवरी को नारेगांव से ज़िला कलेक्टर ऑफिस तक जनाजा मोर्चा निकालने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने ने ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे के साथ मीटिंग करके इस मसले का मुस्तकिल हल ढूंढ निकाला। जिसके बाद तहसीलदार ज्योति राम पवार ने जनाजा मोर्चे के ऑर्गेनाइजर्स को बुलाकर 7.5 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए अलाट किए जाने से मुताल्लिक 1 लीटर उनके सिपुर्द कर दिया। जिसके बाद ऑर्गेनाइजर्स ने इस सरकारी मशीनरी का शुक्रिया अदा करते हुए इस मोर्चे को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। इस तरह से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सदर मौलाना रहीम कासमी, शहर के उलमाए कराम, भारत मुक्ति मोर्चा के जिला सदर डॉक्टर राहुल सोनो ने, जिला सेक्रेटरी संतोष साड़वे, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के जिला सदर विश्वजीत गुनारकर, भारत मुक्ति मोर्चा के अली यार खान, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के हाफिज अब्दुल हमीद, मौलाना अब्दुल सत्तार, मौलाना अब्दुल जब्बार और दीगर की मेहनत रंग लाई, जिस पर साकिनान ने खुशी व इत्मीनान का इजहार किया। भारत मुक्ति मोर्चा के जिला सदर डॉक्टर राहुल सोनो ने और अली यार खान का कहना है कि तहसीलदार ने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलाटमेंट का लेटर तो दे दिया, मगर जब तक 7/12 पर मुस्लिम कब्रिस्तान का इंदराज नहीं हो जाता तब तक वो लोग जमहूरी तर्ज पर आंदोलन जारी रखेंगे। हमने प्रशासन से तकरीबन मुसलसल 2 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि नारेगांव के लिए है तो मुस्लिम कब्रिस्तान चाहिए बोलकर,
और मुसलसल हम कोशिश करते रहे, डिपार्टमेंट से मिलते रहे, और जब डिपार्टमेंट ने हमारी बात नहीं माना, ना अनसुनी कर दी, तो हमने फिर ये तय किया है कि हम है तो धरना आंदोलन करेंगे। जनाजा मोर्चा जो हिंदुस्तान में कभी नहीं निकला था, इस तरीके का मोर्चा हम निकालेंगे। फिर प्रशासन ने हमको है तो हमने उनको 7 तारीख का वार्निंग दी थी कि भाई अगर आप 7 तारीख तक अगर भी हमको है तो कब्रस्तान के लिए जगह नहीं देते हैं तो हम है तो बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। इस पर है तो उन्होंने 8 तारीख को हमको बुलाया, एसडीएम साहब हमारे साथ आए, मीटिंग किए, और उन्होंने कहा कि भाई ये 3 एकड़ और ये 7 एकड़ ये ज़मीन है, इसमें से आप पसंद कीजिए कौन सी चाहिए। हमने है तो 7 एकड़ ज़मीन को है तो 7.5 एकड़ ज़मीन को है तो हमने कबूल किया। फिर उन्होंने है तो दूसरे दिन फिर हमको कुछ लिख कर नहीं दिया, फिर हम अपने जलसे इसके धरने के तैयारी में लग गए। जब उनको खबरें हो गई कि इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरे पॉम्पलेट बढ़ चुके थे, और हमारी जो कॉर्नर मीटिंगें थी 5 दिन तक रातों में मेहनत करके हमने जो तैयार किया था उनको खबर हुई, फिर दूसरे दिन उन्होंने और हमको बुलाए और कहा कि अरे भाई ये हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, ये है। तो फिर हमको वहाँ की जो मैडम थी उसने हमको लेटर दी और ये कहा कि भाई हमें तो आप मुस्लिम कब्रस्तान के लिए 7 एकड़ ज़मीन हम फिक्स करते हैं, अब आप आपका आंदोलन ख़त्म करें। तो इसलिए हमने फिर जब हमको मालूम पड़ा कि 7.5 एकड़ ज़मीन हमको है तो गवर्नमेंट दे रही है, हमने है तो उनसे फिर उस वक्त फ़ोटो अपने लेटर देते वक्त उनसे फ़ोटो भी लिया मैडम से, और फिर है तो पब्लिक में ये ऐलान कर दिया कि भाई अब है तो ये आंदोलन नहीं होगा, इसलिए कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया है। हमारा मकसद आंदोलन करना नहीं था, अगर हमको आंदोलन करना होता तो हम 2 साल से क्यों रुकते। उन सभी तंजीमों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तहसीलदार मैडम ने हमें जो लेटर दिया है कि भाई फला जगह हम आपको अलाउड करते हैं, अगर प्रशासन कहे हुए वादे के मुताबिक अगर हमें जगह अलाउड नहीं करता है जल्द से जल्द 8-10 दिन में, तो हमने आगे की जो हमारी ऑफसेट विंग है, बामसेब जो है हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट में इनके खिलाफ जाएंगे और बड़े पैमाने पर औरंगाबाद के अलावा पूरे महाराष्ट्र में जो है जनाजा मोर्चा निकालेंगे। सिल्लोड़ में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बल्दिया की गैरकानूनी टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ शहर बंद का ऐलान किया गया था, जिसे व्यापारियों की मिलीजुली हिमायत हासिल हुई है। सिल्लोड़ में रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के तसल्लुत वाली शहर सिल्लोड़ की बल्दिया के कामकाज के तरीक़ेकार को जालिमाना करार देते हुए और गैर मुनसिफाना टैक्स के इजाफों की तजावीज़ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सिल्लोड़ इकाई की जानिब से शहरियान की मिल्कियतों और ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ की दुहाई देते हुए सिल्लोड़ बल्दिया के खिलाफ 13 फरवरी को शहर बंद का ऐलान किया गया था। शहर के व्यापारियों ने भाजपा के इस ऐलान पर मिली जुली हिमायत दी और अपनी दुकानें बंद रखी। इस मौके पर बंद की कामयाबी के लिए सुनील मिरकर, भाजपा ताल्लुका सदर ज्ञानेश्वर मोटे, इदरीस मुल्तानी, सुरेश बनकर, साबिक रुकन असेंबली सांडू पाटिल लोखंडे, विनोद मंडलेचा, शंकर डाबके समेत कसीर तादाद ओहदेदारान व कारकुनान ने जद्दोजहद की। बाबरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के घुड़सवार मुजस्समे को अवाम के नाम मंसूब करने की तकरीब गुज़िश्ता रोज़ पीर को जोश व खरोश के साथ मुनक़िद की गई। ताल्लुका फुलहमरी के मज़ाफ़ात बाबरा में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में इस्तादा किए गए शिवाजी महाराज के इस मुजस्समे को शिवाजी महाराज के 13वीं पीढ़ी के फर्जंद युवराज संभाजी राजे भोसले के हाथों आवाम के नाम मंसूब किया गया। ये तकरीब पीर की शब 8 बजे मुनक़िद हुई। इसी तरह सपहर 4 ता 6 बजे के वक्त यहाँ शिवलीला ताई पाटिल के कीर्तन का प्रोग्राम भी मुनक़िद हुआ। तकरीब की इब्तदा में मुताल्लिक़ा समिति की जानिब से युवराज संभाजी राजे भोसले का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए अतराफ़ के मज़ाफ़ात के मर्द व ख़वातीन और नौजवान बड़ी तादाद में बाबरा पहुँचे थे, जबकि खुसूसी शुरका में साबिक रुकन असेंबली और कांग्रेस रहनुमा डॉक्टर कल्याण राव काले, साबिक रुकन ज़िला परिषद जितेंद्र जायसवाल, अनुराधा चौहान, संदीप बोरसे, वरुण पाथरीकर व दीगर मौजूद थे। इफ्तिताह व आवाम के नाम मौसूम करने की तकरीब पुरअमन तरीके से इख्तिताम को पहुँचे। इस मकसद से उत्सव समिति और शिव भक्तों ने सख्त मेहनत की। आणि जिजाऊसाहेबांनी सुद्धा आपला मुलगा, हा माझा मुलगा नाहीये, पण हा माझा मुलगा हा छत्रपती व्हायला पाहिजे, आणि त्या पद्धतीने त्यांना त्याची शिकवण दिली। आणि म्हणून तुम्ही केव्हाही बघा, कुठल्या राज्याची जर तुलना करायची, कुठल्या राज्याची तुलना होऊ शकते, तरी आपण जर तुलना करायचं बघितलं तर अनेक राज्यांच्या लोकांच्या तुम्हाला सगळं काहीतरी चांगलं केलं दिसेल, पण वाईट केलं दिसेल। शिवाजी महाराजांच्या ह्याच्यात पूर्ण आयुष्यात एक चूक करून दाखवा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में
छत्रपति संभाजी राजे भोसले के हाथों शिव जन्मोत्सव की तकरीबात का इफ्तिताह अमल में आया। यहाँ रहे कि शिवाजी महाराज की जयंती के ज़िमन में मुनक़िद इस शिव जन्मोत्सव प्रोग्राम का आगाज़ और इफ्तिताह संभाजी राजे के हाथों किया गया। इस मौके पर संभाजी राजे ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए तकरीब में मौजूद तमाम तलबा की सताइश की और कहा कि हमें अपनी ज़िंदगियों में महापुरुषों के अफकार व नज़रियात पर अमल आवरी करने की ज़रूरत है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के माविन वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम सिरसाट, दीगर असातिज़ा और तलबा बड़ी तादाद में हाजिर थे। वाज़ेह हो कि इस इफ्तिताही तकरीब के साथ ही शिव जयंती के ज़िमन में अब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तकारीब और सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। शिवाजी महाराजांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाचे आज कार्यक्रम झाला। मी एवढं सांगू इच्छितो की खऱ्या अर्थाने शिवाजी महाराजांचा आजचा विचार आत्मसात करणं गरजेचं आहे। शिवाजी महाराजांनी जे स्वराज्य निर्माण केलं, हे स्वराज्य का निर्माण केलं आपल्यासाठी, का हिंदवी स्वराज्य स्थापन झाली, याचा अभ्यास करून आपल्या दैनंदिन जीवनात सुशील कसं शिवाजी महाराज होऊ शकतो अशा पद्धतीने सर्वांनी काम करावं असं माझे सगळे होते। हज़रत शाह मोहम्मद मुश्ताक अहमद कादरी चिश्ती नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के यौम विसाल पर 8वां जलसा आम और कुरान एग्ज़िबिशन गुज़िश्ता शाम रोशन गेट पर वाक़े खानकाह इरफान में मुनक़िद किए गए। ये मजहबी तकारीब खलफ खलीफा नशीन हज़रत अलहाज शाह मोहम्मद मुश्ताक अहमद के खलीफा नशीन व सज्जादा नशीन शाह मोहम्मद अशफाक अहमद अलमारूफ शाह इलाहनुमा सानी कादरी अलचिश्ती नक्शबंदी की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़िद की गईं, जिनमें कसीर तादाद में शहरियान ने शिरकत की और रूहानी फ़यूज़ हासिल किए। इसी तरह कुरान एग्ज़िबिशन का बगौर मुशाहिदा किया, जहाँ कुरानी आयात से उनके तराजिम के साथ हाज़रीन को कुरानी तालीमात से रूशनास करवाने के लिए आवेज़न की गई थी। आज 8वां यौम विसाल है। हज़रत शाह मोहम्मद मुश्ताक अहमद कादरी अलमारूफ अलमा शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनका सज्जादा नशीन मुरीद वली अहद हूँ। आज उनका यौम विसाल है, उसके ताल्लुक से ही आज ये मनाया जा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पैमाने पर एग्जीबिशन जो हुआ ना, आज पहली मरतबा हुआ और इंशाल्लाह आगे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा इंशाल्लाह। मुश्ताक अहमद शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह की उस मुबारक पर ये खास हुआ है और आपने हमेशा देखा होगा कि उस मुबारक पर ये हमारा सिलसिला जो है तो ये तालीमी सिलसिला है। तो ये सिलसिला इसलिए नहीं है कि तावीज़ गंडे डोरे या मेरा अच्छा हो जाए या उसके लिए हमारे पास बैत भी नहीं। आप लोग अच्छी तरह से अहले तरीक़ हजरात है और आप सभी जानते हैं कि हमारे पास मकसद बैत का मकसद क्या है कि मुनसिबत से जो ये कुरान की जो तालीम का यहाँ पर एग्जीबिशन किया गया है, इसको जिस तरह से लॉन्च किया गया है, इसकी आयातों का यह तर्जुमा है और तमाम ये चीज़ की गई है, इसका मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और ममनू हूँ और अल्लाह ताला इस काम में हमारे खैर व बरकत अता फरमाए, यही हमारी और हम सब की दुआ है। मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना अताउर रहमान कासमी औरंगाबाद तशरीफ़ लाए थे। उनकी शहरामद पर रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मीट द ऑथर मुहिम के तहत मौलाना का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ मकामात से सरज़मीन औरंगाबाद पर आने वाले मारूफ मुसन्निफ़ीन, आलिम दीन, मौर्रिखीन, शोरा व अदबा का रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मुसन्निफ़ से मिलिए नामी प्रोग्राम के तहत शानदार इस्तकबाल किया जाता रहा है। इन दिनों कई किताबों के मुसन्निफ़, मुअर्रिख, एडिटर माहनामा ब्राहीन और शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के डायरेक्टर मौलाना अताउर रहमान कासमी औरंगाबाद आए हुए हैं, जिनका मीट द ऑथर प्रोग्राम के तहत पुरजोश इस्तकबाल किया गया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर फाउंडेशन के बानी मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी के अलावा सीनियर सहाफ़ी अबू बकर रहबर, डॉक्टर अशफाक अहमद इकबाल, मौलाना मुफ्ती मुहियुद्दीन निज़ामुद्दीन, इमादुर रहमान इब्न अताउर रहमान कासमी और दीगर मौजूद थे। को भी देखने का मौका मिला और यहाँ के मुमताज़ शख्सियतों से रब्ता रहा और उनसे इस्तिफ़ादा करने का मौका मिला। ख़ास तौर पर जिस जगह मेरा क़याम है वो मदरसा काशिफुल उलूम है, वहाँ के असातिज़ा से, वहाँ के तलबा से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है और ख़ास तौर पर आपके यहाँ आकर जिनसे मैं ग़ायबाना तौर पर बहुत दिनों से वाकिफ़ था और बातें भी होती थी, लेकिन आज मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब से मिलकर निहायत ही खुशी हुई है। हरसूल इलाक़े में
100 फीट डीपी रोड में हायल रुकावटें दूर करने के लिए आज दूसरे दिन भी यहाँ इन्हदामी कार्रवाई जारी रही। वाज़ेह है कि हरसुल इलाके में एक मकाम ऐसा था जो निहायत तंग था, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर व बेशतर ट्रैफिक जाम हो जाता और व्हीकल सवारों को घंटों जाम खत्म होने की अजियत झेलनी पड़ती थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला इंतजामिया और BNC के इश्तराक से गुज़िश्ता रोज़ यहाँ इन्हदामी कार्रवाई का आगाज़ किया गया और 100 फीट डीपी रोड में हायल रुकावटों पर JCB चला दिए गए। आज दूसरे दिन भी यहाँ इन्हदामी कार्रवाई की गई और रही सही रुकावटों को भी दूर करवा दिया गया। सिडको F सेक्टर ता E सेक्टर में बह रहे ड्रेनेज के गंदे पानी के सबब साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक हो चुका है और उन्होंने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। शहर के N6 सिडको के F सेक्टर और यशवंतराव चौहान हाई स्कूल के बाजू की गली से E सेक्टर के दत्त मंदिर तक के इलाके में पिछले 6 माह से ड्रेनेज का गंदा व बदबूदार पानी बह रहा है और इस ताफुन से इलाके के साकिनान को मतली व कै के आर्ज़े लाहक हो रहे हैं और उनकी मजमूई सेहत को भी ख़तरा लाहक है। बताया जाता है कि इन इलाकों में कई मकामात पर ड्रेनेज के चैम्बर या तो टूट फूट गए हैं या उनसे पानी निकल रहा है और इन चैम्बरों से निकल रहे या उबल रहे पानी के सबब अतराफ से गई नलों की लाइनों में ये पानी रिसने के सबब नलों से भी ड्रेनेज आमेज पानी आ रहा है, जिसके सबब यहाँ डेंगू, मलेरिया और बुखार की शिकायत आम हो रही हैं, जबकि इलाका भर मच्छरों की बहुतात हो गई है और आवारा कुत्तों की भी कसरत है। इन तमाम अवामिल के सबब यहाँ के साकिनान का रास्तों से चलना दूभर हो गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड ऑफिसर से साकिनान ने नुमाइंदगी की तो सिर्फ आज कल के तयक़ुन उन्हें दिए जाते हैं और आवाम के इन बुनियादी मसाइल से गफलत बरती जा रही है। इस मामले को लेकर शायद कोई बड़ा एहतजाज करना पड़ेगा। इस तरह का इंतबाह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात के ज़िला सदर मनीष नरोड़े ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को दिया है। वार्ड क्रमांक 62 संभाजी कॉलेज यांचा या भागामध्ये यशवंतराव शाळेच्या बाजूच्या गल्लीमध्ये तसेच सेंट्रल नाका ते चिस्तिया चौक या रस्त्यावरती नेहमी चेंबर फुटीचे प्रमाण वाढलेले आहे आणि गेल्या 6 महिन्यापासून वार्डामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिकांना समस्या ही भेडसावत आहे। त्यामुळे मी स्वतः रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्षाच्या वतीने वार्ड अधिकारी तसेच वार्ड अभियंता यांना वारंवार फोनवरून चर्चा केलेली आहे। तसेच मी लेखीसुद्धा त्यांना निवेदन दिलेलं आहे, परंतु वार्ड अधिकारी, वार्ड अभियंता हे या ठिकाणी येतात, पाहणी करतात आणि निघून जातात, परंतु कुठल्याही प्रकारची समस्या त्यांनी अद्यापर्यंत सोडवलेली नाही। आता समस्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी वाढलेली आहे की ड्रेनेजचं चेंबर फुटून जे पाणी जे वाहते ते F सेक्टर पासून ते E सेक्टर पर्यंत पूर्ण गल्ल्यांमध्ये पूर्ण हे घाण पाणी वाहते आणि त्याच्यामध्ये लहान मुलं हे खेळत आहेत। त्यामुळे रोगराई परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढले, डासांचं प्रमाण वाढलेलं आहे, सर्वत्र दुर्गंधी पसरलेली आहे। परंतु झोपलेल्या मनपा प्रशासनाला तसेच झोपलेल्या नगरसेवकांना जे माझे नगरसेवक या वार्डाचे होते त्यांना वारंवार नागरिकांनी सांगितलं जाऊन त्यांच्या बिडकिन के दही अस्पताल की बोसीदा हो चुकी छत की सीमेंट के खपले तीसरी मरतबा गिर पड़े। खुशकिस्मती रही कि इसकी जद में आकर कोई जख्मी नहीं हुआ है। बिडकिन तालुका पैठन में कायम दही अस्पताल की छत बोसीदा व मखदूश हो गई है और इस छत की सीमेंट के बड़े छोटे खपले टूट कर गिरने के वाक़यात बारहा पेश आ रहे हैं और इन गिरने वाले छत के टुकड़ों व खपलों की जद में आकर किसी के जख्मी या हिलाक होने का खदशा खारिज अज़ इम्कान नहीं कहा जा सकता। अब तक 3 या 4 मरतबा ये खपले गिरने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। इन्हीं में से एक वारदात गुज़िश्ता रोज़ 13 फरवरी को भी रूनुमा हुई। महज खुशकिस्मती ही रही कि यह छत का खपला वार्ड में मौजूद किसी मरीज़ या किसी दीगर शख्स पर नहीं गिरा। इस वाक़े से मुताल्लिक़ बिडकिन दही अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय गोरे से दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने बताया कि पहले ही गुज़िश्ता अरसे 7 दिसंबर 2022 को मुताल्लिक़ा तामीरात आम्मा के शोबे को पैठन के दफ्तर में इस मुताल्लिक़ लेटर दिया गया था और ये लेटर 19 दिसंबर को मज़कूरा दफ्तर को हासिल भी हो चुका था। ताहम उनकी जानिब से अब तक शोबे के किसी एक अफसर ने भी न तो यहाँ विज़िट की है और न ही कोई कार्रवाई की गई। दूसरी जानिब इस मरतबा छत के खपले गिरने के सबब देही मरीज़ों और अस्पताल आने वालों में तशवीश के साथ साथ इश्तियाल और नाराज़गी भी पाई जा रही है। साकिनान का मुतालबा है कि फौरी तौर पर अस्पताल की इमारत और उसकी मखदूश छत की मरम्मत का काम करवाया जाए। अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए गए 6 लाख रुपये नकद रकम, 3 तोले वज़नी तिलाई ज़ेवरात और
दीगर सामान समेत 20 लाख रुपये मालियत पर सारिकों ने हाथ साफ कर लिए। चोरी की ये वारदात साजापुर के क्रांतिनगर इलाके में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक साजापुर के क्रांतिनगर इलाके के साकिन अरविंद भगवंता यादव साई संकेत पार्क बीड़ बाईपास रोड पर महालक्ष्मी कलेक्शन के नाम से लेडीज वियर की दुकान चलाते हैं। 13 फरवरी को तकरीबन 4:30 बजे के करीब अपनी दुकान बंद करके वो अपनी अहलिया के हमराह सिडको महानगर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से गए थे। तकरीब में जाने से कबल उन्होंने 6 लाख रुपये नकद रकम समेत 2.5 तोले की सोने की 2 अंगूठियाँ, 1 तोले के झुमके और अहलिया का वॉलेट वहीं दुकान में रख दिए थे। मंगल की सुबह जब अरविंद यादव और उनकी अहलिया दुकान पर आए तो उन्होंने खुफिया कैमरे के DVR की पिन जमीन पर पड़ी पाई। दुकान का सामान भी इधर उधर फैला हुआ था, जिस पर उन्हें शुबह हुआ तो उन्होंने दुकान के अगबी हिस्से का जायजा लिया तो देखा कि अगबी हिस्से की खिड़की और शटर उचका हुआ है। जिसके बाद उन्होंने दुकान का मुआयना किया तो पता चला कि दुकान में फरोख्त के लिए रखे 12 तक 13 लाख रुपये मालियत के कीमती साड़ियाँ, अपनी बेटी के लिए खरीदा गया शादी का बस्ता, 6 लाख रुपये नकद और 3.5 तोले वजनी तिलाई जेवरात, एक कीमती मोबाइल फ़ोन, इस तरह से तकरीबन 20 लाख रुपये की मालियत का सामान सरका कर लिया गया था, जिसकी तला उन्होंने MIDC वालूज पुलिस स्टेशन को दी और पुलिस इंस्पेक्टर संदीप गुरमे जाए वारदात पर आए और दुकान का बारीकी से जायजा लिया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड को भी तलब किया गया। अरविंद यादव की शिकायत पर यह मामला MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में रात देर गए तक दर्ज करने की कार्रवाई जारी थी। अरविंद भगवंतराव यादव, मी दुकान काल 4 वाजता बंद केलं होतं आणि सकाळी आलो त्यावेळेस मी रोजच्यासारखं दुकान उघडलं, पण मध्ये गेल्याच्या नंतर मला मध्ये तोडफोड दिसली थोडी। त्याच्यानंतर पाठीमागे गेलो आम्ही, पाठीमागे जाऊन पाठीमागचं पाहिलं तर सगळं ओपन केलेलं होतं, वरून खिडकीमधून मध्ये एंट्री केली त्यांनी आणि पुन्हा एक पैठणी साड्याचा सगळा रॅक होता तो पूर्ण खाली केलेला आहे। एक मोठं पार्सल होतं ती पण नेले आणि गल्ल्यामध्ये 6 लाख रुपये 5 लाख रुपये आणि बाकी गल्ला होता, म्हणजे असे 6.25 लाख रुपये कॅश असेल त्याच्यात 6 लाखापर्यंत। त्याच्यात 2 अंगठ्या आहेत 2.5 तोळ्याच्या, झुमके आहेत। गल्ल्यामध्ये पैसे म्हणजे सर आम्ही इथं काल सकाळी इथं आलो आणि इथं सिडकोमध्ये एक कार्यक्रम होता माझ्या मेहण्याची, तिथं जेवायला गेलतो आम्ही, पुन्हा संध्याकाळी घेऊन जाऊ म्हणून यायचं आमचं कॅन्सल झालं, आम्ही तसं घरी गेलो। गल्ल्यामध्ये कधी पैसे राहत नाही, पण त्यावेळेस आमचं नेमकं कार्यक्रमाला गेलो तिथं वाघवर नेपेक्षा म्हणून इथं ठेवले होते आणि संध्याकाळी घेऊन जायचे होते, पण जास्ती वेळ झाल्यामुळे आम्ही तिकडे निघून गेलो घरी। मी राहतो बीड बायपासला। साड्यामध्ये 12-13 लाख साड्या आहेत, मुलीचा बस्ता एक 1.5 लाखाचा आणि एक पार्सल एक 80-90 हजाराचं पार्सल आहे। पोलीस येऊन गेले का? पोलीस मुरमे साहेब येऊन गेले, पोलिसाला जवळपास 4-5 गाड्या आलत्या, डॉग आलता, पुन्हा फिंगरप्रिंट वाले आलते, त्यांचं पण सहकार्य आहे, त्यांनी पण भरपूर सहकार्य केले। तिथं टोटल अमाऊंट कॅश अँड माल ही मिळून टोटल 20 लाखाच्या जवळपास आहे। CCTV कापून नेलाय त्यांनी। CCTV पाठीमागचा होता तो वरी केलाय, पुन्हा मध्ये एक होता तो पण वरी केलाय आणि DVR कापून नेलाय सगळा। बिडकिन के मज़ाफ़ात टोंडोली के नौजवान पर अजनबी सारिकों ने पथराव किया और जब हमला करने की बात खुद सारिक ने कबूल की तो साकिनान ने उसकी पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ताल्लुका पैठन के बिडकिन पुलिस थाना हदूद के मज़ाफ़ात टोडोली का नौजवान नंदू अशोक गरड़ बिडकिन से सोमपुरी के रास्ते 3 व्हीलर से अपने घर टोंडोली जा रहा था कि यहाँ मसोबा टेकड़ी के करीब नामालूम सारिकों ने उस पर पथराव कर दिया और नंदू को शदीद जख्मी कर दिया और खानगी अस्पताल में उसका इलाज जारी था कि इसी दौरान नंदू के घर जाकर ये हमला मैंने ही किया था, इस तरह का इकबाल एक नौजवान ने किया तो उस मौके पर जमा हुए हुजूम ने उस नौजवान को बेतहाशा पीट दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ रहे कि मज़कूरा फिल्मी स्टाइल हमला और बाद-ए-अज़ां हुजूम के ज़रिए हमलावर की पिटाई और उसकी बिडकिन बस स्टैंड तक पुलिस थाना की प्रभात फेरी के सबब बिडकिन में सनसनी फैल गई थी। मज़कूरा मामले को रात देर गए पुलिस थाना में दर्ज किया गया, जबकि आगे की जांच माविन इंस्पेक्टर गणेश सुरोसे की रहनुमाई में माविन फौजदार सोमनाथ तांगड़े कर रहे हैं। रात्री मी घरी जात असताना 11-11:30च्या दरम्यान मला 4-5 जणांनी दगडफेक केली चोरट्यांनी, आपल्या तोंडोळी ते सोमपुरीच्या मध्ये मसोबा म्हणून टेकडी आहे। मी घरी जात असताना त्यांनी माझ्यावरती दगडफेक केली, त्यानंतर मी गंभीर जखमी झालो, तुम्हाला टाके वगैरे पडले होते, परंतु मग मी गुन्हा दाखल केल्याच्या नंतरून त्या आरोपींनी आमच्याशी संबंध साधून आम्हाला गाडीचा खर्च देतो असं म्हणून सांगितलं होतं आणि तो समोर आला तर पब्लिक त्याला पोलीस स्टेशनपर्यंत घेऊन आली। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी
آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. خدا حافظ.